ray optics, objective questions. I'll be doing odd numbers. बात सुनो. An endoscope is employed by a physician to view internal parts of the body. It is based on the phenomena of the fact. Answer will be total internal reflection. Because जो body parts है, organs है, उनको देखने के लिए the image should be reflected back, ना? So for the image to be reflected back, it will follow the phenomena of T I R. बराबर है? Yes, sir. Sir, what's the page number? Ray optics. Refraction, objective. 1 minute. Just check. 150 नहीं 163. ठीक है. Thank you, sir. Yes, sir. Found it. I'm doing odd numbers. Yes, sir. Third question. A plain glass slab is placed over various colors. The which color has to be raised? You know, जब पानी में कोई चीज होती है तो H apparent is H by mu. Yes, sir. म्यू सबसे ज्यादा कौन से कलर का होता है? म्यू फॉर violet is greater than mu for red. Red. Yes, sir. And I say H apparent of violet will be H apparent for red. Red. So can anyone tell me who will be raised the most? Red, na? Red was maybe very small. Yeah. And who will be raised the least? Violet. ये relation है. H is inverse to mu if you see. Important question. And this is a fact. Similarly, if you see the fourth question also, critical angle is least for. So what is the formula for sine C? 1 by mu d by Mu for which color is maximum? Violet is greater than mu. Violet is greater than red. So sine C is inverse, na? So C will be C for violet will become less than C for Less red. than C for red. जिसका C कम रहेगा उसमें TIR सबसे पहले होगा. Yes, sir. Okay. So theta C for violet is the least. So critical angle is least for violet. Violet. So who will undergo TIR first? Violet will undergo TIR, okay, first. And who will undergo TIR last? Red. Remember all these facts, huh? It's very important. It's asked in the examination. Okay, we come to question number 5. Pay attention, please. Fifth question. The power in dioptry of an equiconvex lens of radius of curvature is 10 is refractive index. So it is just based on formula. You know, 1 upon f is mu minus 1. 1 upon r1 minus 1 upon r2. And 1 upon f is nothing but power, no? Hello. So mu is given as 1.6 minus 1. 1 upon r1. Now R1, R2 is both the same because it is an equiconvex lens. So this will be R1 and this will be R2, but both are R. Can anyone tell me R1 is plus R Plus R and and R2 R2 is is minus R. So this will be 1 upon R minus 1 upon R will become this one.
So it will become, power will become 0.6 into 2 by R, where R has to be in meters. Huh? So it will become 0.1. So this is correct. So power will become plus 12D. This power is positive. It's plus 12. Did you understand? Yes, sir. So it can be in case of concave or convex or whatever, be the same. You stick to the basic formulas and solve it. कोई shortcut वॉटकट कुछ नहीं. Stick to the basic formulas and do it. When light is incident on underwater from water air interface, मतलब it is going from denser to rarer. The angle of incidence is slowly increased from zero. The emergent beam coming out will turn from, yes sir, which light is passing from inside? White. See, yeah. Can I say, suppose this is white light ka source. This is the right which is passing. Okay, so some part will be coming out. Incident ray is incident from zero to something. तो यहाँ से ये तो जो जीरो है वो तो बाहर निकल जाएगा white light. Yes, sir. फिर यहाँ पर ऐसे होगा. सबसे पहले कौन सा रे अंदर मुड़ेगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था. वायलेट. हेलो. Who will undergo TIR सबसे पहले? वायलेट. बराबर. हेलो. Yes or no? फिर हम लोग और इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे करके रेड भी अंदर मुड़ जाएगा. हेलो. तो जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो वैसे इट इज टर्निंग फ्रॉम वाइट टू Violet to red. वायलेट टू रेड. मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद रेड भी अंदर चला जाएगा तो कुछ बाहर नहीं आएगा. Yes, sir. तो आंसर विल बी TIR. नन ऑफ दीज. Yes. TR will not happen after some time. Answer will be Hmm. none of these because it is going from white to violet, violet to indigo, blue, green, yellow, orange, red. और उसके बाहर मतलब इस पॉइंट के बाहर can I say all the rays will be reflected inside. So यहाँ पर this is the condition, this is the area where the rays are seen. इसके beyond red will also pass inside. उसके beyond अगर आप करेंगे तो कुछ भी कलर आपको दिखाए नहीं नहीं देगा. देगा. और ये हमने एरिया सब किया है. हमने सिनॉप्सिस में पढ़ा है कि इसका एरिया क्या होगा और कैसे होगा. वो सब डिटेल में हमने किया है. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. इन अ फिगर sin I upon sin R is equal to, अच्छा, I is in which medium? This medium. R is in which medium? This medium. बेसिक Third. स्नेल्स लॉ अगर आप लगाएंगे, मैंने आपको बता चुका है स्नेल्स लॉ अगर आपको लगाना है तो कैन आई से μ1 sin I1, Side. but I1 is I, Yes, sir. and it will become Mute. μ3 Mute 3 sin IR. sin R. Sorry. इधर R है. Can I say sin I upon sin R is going to become μ3 by μ1? So this will be the answer. हेलो. बेटा हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, सिर्फ हमको सिर्फ पॉलिश करना है और थोड़ा, और you will be able to do it. So basic Snell's law we are applying and you will get the resultant answer. I'm going to question number 11. A prism of apex angle A is given, mu is given, the angle of minimum deviation. You know prism formula, mu is equal to, sir, this is very easy, sin A plus delta m divided by 2 upon By sin A by 2. sin A by 2. So mu is root 2 sin A plus delta m, that is 60 plus delta m divided by 2 upon sin A by 2, that is sin 30. Sin 30 is half of root 2 will become 1 by root 2. 1 by root 2 का sin inverse will become 45 degree, will become 60 plus del m divided by 2. 90 minus 60 will become 30. Hello, did you understand this basic mathematics right now? Yes, sir. तो ठीक है, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग शायद, ये सेम सम पहले भी हम लोग ने किया है. आई डोंट रिमेम्बर, याद है. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. A ray of light traveling So, from medium of हाँ बेटा. so 1 second, I go back. Thank you.
A ray of light traveling from a medium of refractive index is incident on an angle I on a composite transparent plate consisting of three plates of refractive index mu1, mu2, mu3. The ray emerges from a composite plate into a medium mu4 at an angle how much? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको क्या लगाना है, तो हम लगाते हैं हमेशा कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ, mu1 sin I1 इस लास्ट मीडियम में जो रे निकलेगा, बिकॉज इसकी बात हो रही है ना, तो कैन आई राइट mu4 sin I4? हेलो, Yes, sir. what is mu1 in the first medium? mu1 is mu1 sin mu1. I1 is I, mu4 is mu4, sin I4 is given as x. Hello, so Yes, sir. sin x is going to become यार mu1 sin I By on mu4, mu4. Yes, sir. mu1 sin I, mu1 sin I by mu4, यही तो है. हेलो, गॉट इट ना, सिंपल है. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर ये भी कर लेते हैं. चलो, मैंने आपको बताया था एक चीज कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको अगर ऐसे काटेंगे, इसको अगर ऐसे काटेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो इसका पावर आधा हो जाएगा, बराबर है क्या? Yes, sir. और इसका पावर p है, इसका फोकल लेंथ f है, तो इसका पावर p पर बाई 2 हो half. गया, तो f Yes, कितना हो गया, 2f हो गया, 2F हो गया. एक का ईच. Yes, sir. Yes, sir. तभी ईच जो है यहाँ पर, इसका पावर इसका फोकल लेंथ कितना है, 2f है, इसका भी 2f है, इसका भी 2f है, इसका भी 2f है, बराबर है. Yes, अच्छा, sir. मैंने आपको बताया था कि अगर चार लेंसेज सीरीज में रहते हैं तो इट एक्ट्स लाइक अ कैपेसिटर, सो 1/f इक्विवेलेंट विल बिकम 1/f1 1 upon F1. 1 upon F2 plus 1 upon F1. 1/f3. कितना है आंसर इसका, कितना हो जाएगा देखो जरा, 2 by F. कितना होता है 2/2f ना. So अरे 4 by 2F. So 2 4/2f, and हाँ 4. So 2 by 2/f हो जाएगा. yes, sir. 1/, तो f इक्विवेलेंट कितना हो गया, F by 2. मिल गया. Yes, sir. ठीक है ना. So और 1. अगर और एक चीज मैंने आपको बताया था कि अगर इसको ऐसे कट करते हैं तो कुछ नहीं होता है. तो कुछ नहीं होगा, तो पावर डिक्रीज नहीं होगा. You have to apply the same formula only. 1/f is 1/f, 1/f1. But ठीक है, वही बात समझ आएगी. Yes, sir. ओके, इजी है, हमने सब कुछ कर लिया है बराबर से. हमने छोटे छोटे मोटे जो पार्ट्स है डील में देखते हैं. 15th वाला सम, a thin convergent glass lens of mu glass and power is 5 diopter. पहले ये बात करते हैं हम लोग इसके बारे में. पावर का फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, 1/f is mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2. We are just talking about this statement. स्टेटमेंट. Yes, sir. पावर कितना है, 5 दियोप्टर है, बराबर है क्या. म्यू कितना है, 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, बराबर है. When this lens is immersed in liquid of refractive index mu1. अब मेरी बात सुनो, अगर लेंस को हम लोग, ये जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ग्लास का लेंस है ना बेटा, इसको हमने सपोज पानी में डाल दिया. हेलो, पहले के इसमें ये लेंस कहाँ पर था, एयर में था, एयर सही है में क्या. था, अभी पानी में. Yes. मतलब ये जो चीज है, ये जो केस है, ये जो केस 1 है, उसमें लेंस जो है यही है, साइड में तो एयर है. ओके, अच्छा, जब भी ऐसे होगा तो इसको mu1 पकड़ो, अंदर का mu2 पकड़ो, तो इसका फॉर्मूला पावर का हो जाएगा 1/f इज mu2 by mu1 minus 1. हेलो, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा ना, नीचे एयर था तो. हेलो, Yes, sir. 1/r1 minus 1/r2. R1 R2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है. अच्छा, इसका फोकल लेंथ कितना है, 100. हेलो, Yes. हाँ, Understand. अगर ये फोकल लेंथ मीटर में लेना है, बिकॉज पावर के बारे में हमेशा याद है ना, पावर इज Always in 1/f इन मीटर. Yes, sir. ये पावर लिखा जाएगा 1/100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर, बराबर क्या. तो ये हो जाएगा Yes, 1 sir. diopter विल बिकम इक्वल टू mu2 by mu1. mu2 कितना है, mu2 ग्लास ही है, अरे ये तो अंदर वाला तो ग्लास ही है. Yes, sir.
ग्लास का तो 1 point 1.5 ही है, 1 point yes sir. अपॉन लिक्विड का हो जाएगा म्यू एल माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये नीट में ना बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड मार दो। हेलो, Yes sir. अरे ये 5 diopter है, ये क्या रहेगा 5d अपॉन 1d। देखो 1/r1 1/r2 ये तो उड़ ही जाएगा ऐसे ही। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, Yes sir. 1.5 Same. माइनस 1, 1.5 0. अपॉन म्यू 0 माइनस point. 1। हेलो, तो ये क्या हो गया, Yes sir. 5 इज इक्वल टू 0.5, 1.5 म्यू माइनस 1, ये क्या हो गया 10 टाइम हो गया। हेलो, ये क्या होता है 1.5 बाई म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1, तो 1.5 बाई म्यू इज इक्वल टू 1.1, so mu is going to become 1.5 by 1.1, that is 15 by 11। हेलो, Yes sir. अभी इसका क्या करेंगे, देखो ना जरा क्या है आंसर। हेलो, अच्छा एक मैंने गलती कर दी है, कोई पहचान सकता है क्या गलती है? एक मैंने गलती कर दी है, पढ़ने में गलती कर दी है। आप लोग मुझे बताओ क्या। Thin conversion है. नहीं नहीं नहीं, पढ़ो, सब लोग पढ़ो और मुझे बताओ गलती क्या की है मैंने। मैंने पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी है। Oh, it acts as a diverging lens. हाँ ये, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। Yes हेलो, sir. अरे समझा क्या, ये +5d है Yes sir. देखो। Yes sir. Yes sir. ये हो, गलती मत करना मेरी तरह, ओके। Yes हेलो, sir. Yes ठीक है, sir. हाँ भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर थोड़ा, ये -5 ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया बराबर। चलो तो ये -0.1 आ गया, क्लियर है? Yes sir. कितना होता है ये 0.9, ये इधर आके 0.9 हो जाएगा ना। हेलो, 3 5 जा 3 3 जा 5/3 आएगा। हेलो, Yes sir. Yes sir. समझ में आया क्या क्या गलती हो गई, आंसर ढूंढते रह जाएंगे वरना। Yes sir. ध्यान रखना ये चीज का बेटा, डाइवर्जिंग माइनस कन्वर्जन प्लस एवरीथिंग शुड बी वेरी मच प्रॉपर्ली डन। 16th 17 क्वेश्चन, आई थिंक टोटली देयर आर 35, फटाफट हो जाएगा। देखो ना, अ प्रिज्म कैन हैव मिनिमम मैक्सिमम रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना होना चाहिए, याद है ना, फॉर टीआईआर टू हैपन, याद है फॉर टीआईआर टू हैपन ए शुड बी ग्रेटर देन, Greater than the critical angle. याद है ना, फॉर नो इमर्जेंस Yes sir. Twice the. Yes sir. Yes sir. ए शुड बी ग्रेटर देन 2c है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कितना होना चाहिए 2c, Please. ताकि रे अंदर के अंदर ही रहे, बाहर इमर्ज ना हो. बाहर इमर्ज ना हो। दिस इज द कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, दिस इज डन पहले। क्वेश्चन नंबर 19, वही काम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म ए, refractive index is cot a/2, the minimum angle of deviation, वही formula mu is equal to sin a plus A delta plus m delta divided by m upon upon sin, sin A/2. but mu is given as cot a/2। क्या cot a/2 को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, cos a/2 अपॉन sin a/2। अरे दिया है भाई, mu is cot a/2 दिया हुआ है। हेलो, देखो ना दिया Yes है ना, sir. क्या कर Yes. रहे हो यार, it's given, can I cancel this sin and sin? Yes Hello, sir. so can I write this as sin a plus delta m divided by 2, इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस a/2। अरे भाई ये कॉस है ना, इसको Yes sir. साइन में Cos है तो बदलने के लिए sin में लिखते हैं ना convert यार। कर. ये Yes sir. साइन Yes साइन sir. इनवर्स लेके उड़ा दो, इनवर्स लेके उड़ा दो। हेलो, इनवर्स लेके Yes उड़ा, sir. मिल तो गया यार, a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2 अपॉन दिस विल बी पाई माइनस a/2। क्या मांगता है तुम्हारे को, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा m मांगता है, तो डेल्टा m विल बिकम पाई माइनस 2 है ना। इट्स बेसिक मैथमेटिक्स मैन, व्हाट आर यू ऑल डूइंग। Yes sir.
अरे कुछ समझा क्या क्या किया मैंने? खाली मैनिपुलेट किया बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। 21 पे आते हैं। The focal length of combination of two lenses is doubled. Okay. If the separation between them is doubled. इसका मतलब क्या? दो लेंस है जिसके बीच में सेपरेशन है। हेलो, Yes, sir. दो लेंस है, इसका फोकल लेंथ पकड़ लो f1। अच्छा वाला समय, सब लोग इधर बात सुना। ये हमने शायद सिनॉप्सिस में इसके बारे में कम पढ़ा है। Always remember the net focal length of this का formula will become 1 upon f net will be 1 upon f1 plus 1 upon f on F2. minus d upon f1 f2। अगर दोनों चिपके हुए रहते तो क्या आता? 1 upon f1 plus 1 upon f2 बराबर है। But since sir. they are separated by distance d, this formula I have given it to you। ध्यान दो, मेरी बात सुनो। तो can I say यहां पर ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? इस फॉर्मूला को थोड़ा मैनिपुलेट करके हम लोग ऐसे बना सकते हैं। 1 upon f net will become f1 plus f2 upon f1 f2 पहले दो टर्म को माइनस d upon f1 f2। अरे भाई सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, Yeah, sir. तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon f net will become f1 f2 कॉमन ले लिया नीचे, ये बन जाएगा f1 plus f2 माइनस d। चलेगा ना? वही तो है। ओके। अरे बोलो। Yeah, sir. ये जनरल फॉर्मूला बनाया मैंने, कुछ कोई मैनिपुलेट नहीं किया हमने। आई एम जस्ट मेकिंग विच फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। सही है, सुनो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। द फोकल लेंथ इज डबल्ड, मतलब एफ नेट डबल हो गया इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज डबल्ड। ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और उल्टा कर दूं ना, चलेगा? एफ नेट को लिख सकता हूं मैं f1 f2, उल्टा कर दिया भाई। ये भी तो चलेगा ना, दिस आल्सो जनरल ओनली ना। हेलो भाई बोलो। अब क्या बोल रहा है? द फोकल लेंथ इज डबल्ड इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज डबल्ड। मतलब क्या डबल हुआ? बोलो, क्या डबल हुआ भाई? D double हो गया। डी डबल हो गया तो क्या डबल हुआ? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जल्दी यार कुछ पढ़ना सीखो। इफ डी इज डबल्ड देन एफ नेट इज ऑल्सो डबल्ड। यार बोलो। अच्छा, डी डबल करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, डी डबल करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? F1 plus F2 minus 2D हो गया। माइनस टू डी हो जाएगा। ये हो जाएगा f1 प्लस f2 माइनस टू डी डिनोमिनेटर। अच्छा, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण क्या हुआ? ये करने के कारण क्या हुआ? ऐसे करने के कारण क्या हुआ? F net double हो एफ गया। नेट डबल हो गया। एफ नेट डबल हो गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर हाफ हो गया। हेलो, जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर था वो पूरा हाफ हो गया, पूरा। पूरा हाफ हो गया। तो कैन आई राइट दिस एज हाफ ऑफ f1 प्लस f2 माइनस डी। हेलो, यस यस। जब आपने d को डबल किया तो ये पूरा जो डिनोमिनेटर ओरिजिनल डिनोमिनेटर था वो हाफ हो गया। यार बोलते ही नहीं हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? सर, हाँ, but then how do you equate it together? But why not? See, when you put But- this, see what is the condition given, you read the condition. The focal length is doubled if the separation between them is doubled। मतलब इधर अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे
तो हेलो, एफ नेट डबल हो जाएगा। एफ नेट, एक मिनट, हाँ ये डबल हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब ओरिजिनल डिनोमिनेटर कितना हो गया? -2d। हाँ हाफ हो पूरा गया ना? हाफ हो जाए सो पर पूरा हाफ लाइक। नहीं, ओरिजिनल डिनोमिनेटर हाफ हो गया। हेलो, यस सर, यस सर। का मतलब ये जो पूरा डिनोमिनेटर पहले हुआ करता था ना, वो ये क्या हो हाफ हो गया? गया ये हाफ हो गया। सर ये तो बट। लिखा है मैंने। हाँ बट सर लाइक द थिंग दैट द डिनोमिनेटर दैट वाज हाफ वाज 2d also no, so like the नो नो, separation increased, that is why it got half। अच्छा ठीक है, एक काम करता है, दूसरे दूसरे मेथड से करते हैं, कोई टेंशन मत लो आप मुझे बताओ एफ नेट डैश क्या होना चाहिए? मेरी बात सुनो, एफ नेट डैश क्या होना चाहिए? F1 F2 अपॉन f1 F1 plus प्लस f F2 माइनस 2D, minus बराबर? 2d। आप ये बोल रहे yes हो। sir। अच्छा, दिस F net dash is becoming how much? Is becoming how much? 2 F net। 2 f net, yes sir। अरे भाई बोलो ना, अभी देखो आंसर आने वाला है आपका। 2 F net, F net का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? ये है। yes sir। अरे आ गया भाई, देखो ना यार। okay, yes sir, yes sir, अरे understood, समझा understood। क्या क्या मैं बोल yes रहा sir, हूँ? yes sir, ये yes sir। उड़ा दे, ये समझता नहीं है ना, वो ठीक है चलो cancel उड़ा लो। ये उड़ा दो, ठीक है चलो। ये सही है। yes sir, समझ आया। yes sir। अभी ये सब उड़ने वाला है। f1 plus ये f2। तो ये तो हाफ हो गया ना। yes तो sir। वही तो आया, इसको जाने दो, ये अगर आपको नहीं समझता है तो उसको उड़ा दो। ये सही है, ये सही है। yes sir, समझ आया। तो ये क्या लिखा जाएगा, जल्दी बता दो। F1 प्लस f1 plus f2 minus d। माइनस 2D इज हाफ ऑफ, उल्टा हो गया ना, हाँ नीचे से उल्टा, कंपेयर okay fine fine। कर। F1 प्लस F2 माइनस डी। minus d। अब क्या चाहिए मेरे को? तो ये मिल गया हमको। अब यहाँ पर F1 प्लस F2 ढूंढ लेता हूँ मैं, देखो जरा इसको क्या करूंगा मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2F1 प्लस 2F2 माइनस 4D इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस डी। ओके, हेलो, yes sir। ये क्या हो जाएगा 5D, तो ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू F1 प्लस F2। हेलो, yes sir। अब ये खत्म नहीं हुई है कहानी। अब क्या बोल रहा है, द सेपरेशन इज इंक्रीज टू 4 4 टाइम्स। times। मतलब क्या करना है आपको, फॉर्मूला में क्या करना है, डी के कितने सेम गुना खाली बढ़ा देना है? -4d कर देंगे। ये डी की जगह क्या हो जाएगा, ये जो डी दिख रहा है ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। 4 times। हेलो, yes sir, yes sir। ये हो गया 4D, सही क्या? yes sir। ओके, if the separation between them is increased to 4 times the magnitude of the focal length। ओके, अब हम लोग फिर से जाते हैं। एफ नेट का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था बेटा आपके पास? f1 f2 1 by F2 f1 प्लस F2 minus d। बस डी, बराबर? yes अच्छा, sir। मेरे को F1 प्लस F2 3D मिला ओरिजिनली। yes अरे sir। भाई ये ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक yes sir, इंक्रीज नहीं किया this मैंने। one yes ये sir। क्या हो गया 3D, ये क्या हो गया डी, ये क्या हो गया F1 F2 अपॉन 2D। हेलो, yes sir। मजा आएगा, इधर देखो। ओके, फाइनली क्या कर रहे हो, ये एफ नेट डैश बना रहा हूँ, ऊपर का तो सेम ही है, F1 प्लस F2 माइनस डी, बट डी कितना हो गया, 4 गुना हो गया। yes sir। यही तो बता रहा है। हेलो, yes sir। थोड़ा जेई वाला समय है। F1 F2, F1 प्लस F2 की जगह तो 3D है, ये तो ओरिजिनली 3D है ना। हेलो, वो तो ढूंढा ना yes मैंने। yes sir। माइनस 4D, तो ये कितना हो गया? -1d। अच्छा। ये क्या माइनस 1D, हाँ F1 by अपन d। F2 पे, हाँ yes बाई sir। डी। अब मुझे बताओ एफ नेट और एफ नेट डैश का क्या रिलेशन है? क्या हो गया एफ नेट, अरे डिवाइड मार दो ना यार उल्टा। हेलो, -2 का। ये क्यों ऊपर गया -2? एफ नेट डैश विल बिकम -2 एफ नेट ओरिजिनल, बराबर? yes sir। अब ये जेई वाला समय बहुत मस्त है, डबल है, क्लियर है? yes sir। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना।
आपको समझ में आएगा. दिस इज अ नाइस क्वेश्चन फॉर जेई लेवल, जेई मेन लेवल, जेई एडवांस लेवल. ऐसा ना, क्या समझा? हेलो हेलो, Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला. जैसे 2-4 सम मिल जाएंगे आपको बीच में. चलो आगे बढ़ेंगे. Yes, sir. Done. 23 पर आता है. 23rd क्वेश्चन. क्या बोल रहा है भाई ये बोल रहा है an optical system consists of a thin convex lens of focal length 30 and a plane mirror 15 behind the lens. यहाँ पर ये मजेदार ये दो कॉम्बिनेशन वाला समझिए ऐसे. और 15 सेंटीमीटर दूर कौन है? प्लेन मिरर. Okay. हेलो. Yes, sir. The object is placed 15 centimeter in front of the lens. ये ऑब्जेक्ट है. कितना सेंटीमीटर? 15. अच्छा कोई बता सकता है इसका फोकल लेंथ कितना है? 30. सही है 30 क्या? centimeters. Yes, sir. इसका फोकल लेंथ जो है वो 30 है. ठीक है, पहले तो लेंस से गुजर रहा है ना. हेलो. Yes, sir. Yes, वो sir. मिरर विरर को छोड़ो, केस 1 के बारे में बात करें कि सीधा सीधा मिरर लेंस फार्मूला लगाएंगे हम लोग. लेंस फार्मूला क्या बोलता है? 1/v माइनस 1/u इज 1/f. मैंने आपको One सिखाया upon है, जो पहले आता है उसके बारे में पहले बाद में सोचो ही मत. 1/v माइनस 1/u, बट u कितना है? -15 है. ये +15 हो जाएगा, विल बिकम 1/30. हेलो. Yes, sir. तो v1 का वैल्यू आपको आएगा -30. ये आएगा v का वैल्यू -30. इसका मतलब क्या? -30 मतलब क्या बनेगा इमेज? Left side पे 30 centimeters. इधर बनेगा I1 कितना? Yes, sir. 30 centimeters. ए, समझा क्या? Yes, sir. राजवीर एक आंसर दो जरा, क्या इसके फोकस पे बन रहा है कॉन्वेक्स लेंस के? No, sir. राजवीर. Focus right side पे है ना हाँ F2. हाँ, वेरी गुड. हाँ वेरी गुड, यही चाहिए था. वो उल्टा, वो फोकस नहीं है. फोकस Yes, इज sir. Yes, ऑलवेज sir. द सेकंड फोकस. हेलो Yes, हेलो. sir. हाँ Yes, कुछ sir. लोग है, ये मिरर नहीं है भाई. ये गलती मत करना, ये बहुत सारे लोग गलती करेंगे भाई. ये फोकस फर्स्ट फोकस है. फर्स्ट फोकस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, सेकंड फोकस का इंपॉर्टेंस है. अच्छा ठीक है, अब ये हो चुका. अब मिरर के पास जाते हैं. मिरर का जो ये इमेज है दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट. Object. मिरर से कितनी दूरी है? अरे मिरर से 45. कितनी दूरी है यार? 45. Minus मिरर 45. के Yes. मिरर के इस तरफ बनेगा इमेज. इस Yes, तरफ sir. बनेगा ना. Plus कितना? 45. 45 cm पर ये इमेज दिखाई देगा. वही इमेज जो दिखाई देता, सपोज इधर है. ये क्या इमेज? I2. सही है क्या? Yes, sir. द डिस्टेंस फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा भाई, मुझे ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस चाहिए इस इमेज का, तो मुझे ये डिस्टेंस मांगता है. बोलो. 75 centimeters. 45 15 एंड 15 कितना होता है? 75 cm. 75. समझा क्या? Yes, sir. ये कर चुके हैं पहले भी भाई, कोई इश्यू नहीं है. अभी अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये प्लेन मिरर ना होके कॉनकेव मिरर होता तो मैं मिरर फॉर्मूला लगाता. इमेज ऑफ द फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड. Object of the हेलो, second. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? तो Yes, अगर sir. इसकी जगह कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं नहीं है. है. आपको सीधा सीधा केस 1 केस 2 केस 3 लगाते जाना है एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर. आई होप आई हैव अंडरस्टूड. ओके, आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. ठीक है, 25th पर आते हैं हम लोग. 25th. फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्मॉल एंगल प्रिज्म. स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब sin थीटा is थीटा. बराबर क्या? अरे बोलो. ओके, सो आपको तो मालूम है कि डिविएशन का फॉर्मूला रहता है a mu -1. ए, थिन प्रिज्म याद है ना? हेलो. For refraction through a small angle prism, the angle of minimum deviation. तो इधर कोई मिनिमम मैक्सिमम डिविएशन का बात ही नहीं है. डिविएशन इज प्रोपोर्शनल टू म्यू. हेलो. इसके लिए तो हम लोग बोलते थे
violet will deviate the most and red will deviate the least. least. Can I say क्या आंसर क्या है? Will increase with increase of refractive index. Hello. Yes, sir. Will increase as the refractive index increases. It is not C, yeah. It is not directly proportional to angle of the prism. ये थोड़ा because a mu minus 1 भी है, and this is also not constant. This is also changing for every color. तो आप डायरेक्टली डेल्टा को a से रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर Yes, डेल्टा sir. को a से डायरेक्टली रिलेट करना तो दूसरा एक कांस्टेंट होना मांगता है ना, वो सामने वाला कांस्टेंट थोड़ी है. जैसे आप v इज इक्वल टू आई आर से रिलेट करते हो, तो अगर आपको लिखना है v इज प्रोपोर्शनल टू i, तो आपको r को क्या बनाना पड़ेगा? कांस्टेंट. हेलो हेलो, ठीक है. 27th. A thin convex lens of focal length 30 is placed in front of a plane mirror. An object in a plane is at a distance of x from the lens, not in between the lens. Then the final image will coincide with its own self. Okay. मजा आने वाला है. फाइनल इमेज कब कोइंसाइड करता है? ओके, देखो मेरी बात सुनो, वही सेम समय, बट मैं आपको थोड़ा हिंट देके बनाता हूँ. देखो इधर, हेलो, आई ऑल देयर भाई यार, और कुछ दो चार समय यार बोलो. हेलो, Yes, sir. an object is placed at a distance x from the lens. तो ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है x. सही क्या? अच्छा, क्या शर्त क्या बोल रही है? फाइनल इमेज शुड कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट भी इधर चाहिए और Final image भी. अब मजा आएगा. सब लोग इधर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. सपोज ये पॉइंट होता फोकस. ये पॉइंट क्या होता? Focus. फोकस. Inverted. पॉइंट होता, मेरी बात सुनो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बनाता हूं मैं इधर, चलेगा ना? Yes, sir. ये फोकस होता. ये फोकस अगर बनेगा तो रेस जो भी निकलेगी वो कैसे इमर्ज करेगी बाहर? Parallel to the principal axis. एंड जब पैरेलल से निकलेगी तो व्हेन इट फॉल्स ऑन द मिरर इट विल फॉल परपेंडिकुलर एंड इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ. Yes, sir. वापस से जाकर इधर अपनी जगह पर बैठ जाएगी. Hello? Yes, sir. Yes, sir. That means this object is placed at the Focus itself. फोकस. और फोकस का वैल्यू कितना है? 2f. Sorry. 30. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अरे भाई समझा गया आपको कॉन्सेप्ट? Yes, sir. नीट वाला कॉन्सेप्चुअल सम है. ओके, गेटिंग इट? अच्छा, अगर इसकी जगह पे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होता तो इट शुड फॉल परपेंडिकुलर टू द मिरर. हेलो, it should fall normally on the mirror. Yes, Then sir. only it will retrace its own path, na? Yes, sir. मतलब final image should be the R of that mirror. Final image should be the R of that mirror, and R of the mirror is 2f of the mirror. हेलो, क्या समझ में आ रही है मेरी बात? के ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ मैं इधर? हेलो. Yes, sir. आगे आएगा वो सम, आगे आएगा, आपको समझ में आएगा. एक मिनट, आई थिंक इट इज द 31st क्वेश्चन. आगे आएगा वो सम, 2 मिनट सब्र करो. अंडरस्टैंड? दिस इज ओके यार? बोलो. Yes, sir. 29. इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको आ जाएगा यार. ये वही सम है 29 वाला यार, ये वही है. बार बार हम करते जा रहे हैं. कौन सा फॉर्मूला लगाना है देख कर ही पता चलता है. म्यू इज इक्वल टू Sin A delta M by 2 upon sin A by 2. हम लोग है ना, 3 और लेक्चर है प्रैक्टिस के लिए, तो कोई इश्यू भी नहीं है, यहाँ आ जाएगा. इसका आंसर आपको जो भी आएगा वो देख लेना आप लोग, ठीक है? 31st Yes, पर sir. आता हूँ मैं. 31st क्वेश्चन. अच्छा, इस 30 करते हैं. अंदर कौन है? एयर. एयर का म्यू 2 कितना रहता है? 1. और यहाँ पर जो बाहर है म्यू, कौन है वो? 1.5. सही है? 1.5. Yes, sir. अच्छा, पावर का फॉर्मूला लिखने आता है क्या? मैंने आपको बताया था 1/f इज इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1 Minus 1. 1/r1 minus 1/r2. minus R2. लिखते हैं हम लोग. μ2 कितना है? 1/1.5 minus 1 1/r1. r1 is 10, तो ये प्लस हो जाएगा. माइनस और माइनस प्लस बाय 10.
कैन आई से दिस आंसर विल बी नेगेटिव? जो भी आंसर आएगा, हेलो, Yes, sir. आपको आएगा -15। इसका मतलब क्या हुआ है? क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है क्या डाइवर्जिंग लेंस है? हेलो हेलो, Divergent. हाँ दिख रहा कॉन्वेक्स है, बट आपको Yes, मैंने sir. कहा था कि अगर बाहर का मीडियम का म्यू बड़ा होता है तो रैदर देन कन्वर्जिंग It will इट विल एक्ट एज अ, divergent. ये बताया था, याद है ना? Yes, sir. ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एंड जेईई। हेलो, फॉर्मूला याद रख लेना, ये कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूला याद रखो साइन के साथ। हेलो, करेंगे ना? Yes, ठीक sir. है, चलो आगे बढ़ते हैं। 31st, देखो बात सुनो। A point object is placed at a distance of 12 cm from a convex lens of focal length 10 cm. ये फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ 10 cm है, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है बेटा? 12 cm, मतलब बियॉन्ड एफ रखा है, सही है क्या? Yes, sir. एफ इधर की तरफ, ठीक है। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 cm फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पर 10 cm कौन सा मिरर है? Convex. हेलो, Yes, sir. such that the image formed by the combination coincides with the object itself। समझ में आ रही है बात? मतलब लाइट इज रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ। जब भी ऐसे स्टेटमेंट बोलेगा ना, अरे दो सम छोड़ के यही सम किया था यार प्लेन मिरर का Yes, भी। sir. Yes, sir. Yes, sir. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इसका एफ मांगता है। अच्छा, इसका एफ मांगने के लिए मेरी बात सुनो, क्या होना मांगता है? होना ये मांगता है कि लाइट रे जाए ऐसे, हेलो, और फिर वो कन्वर्ज कहाँ करे? वो कन्वर्ज करे, Back. नहीं नहीं मेरी बात सुनो, कन्वर्ज वो कहाँ करे? इधर जाएगा, इधर जाएगा, and it will converge at the Focus. radius of curvature, hello, Yes, sir. of this mirror, hello। Yes, sir. जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कन्वर्ज करेगा, मतलब ये रे जो है इससे परपेंडिकुलर है। अरे कुछ मैथमेटिक्स आता है कि ऐसे ही है? हेलो, Yes, यार sir. रेडियस और कर्वेचर और रेडियस परपेंडिकुलर ही तो होता है। हेलो, सरफेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दैट मींस लाइट इज रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ। सही है क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? अच्छा मेरी बात सुनो, ये डिस्टेंस कितना है बोलो? सही है? हेलो, ये डिस्टेंस कितना है? 2f है ना? आई ऑल देयर? हाँ भाई, क्या हो रहा है यार? समझा ये बात कि फिर से समझाओ? हेलो, लुक अगेन, सी, there was a lens and an object is placed 12 cm, object is placed over here 12 cm, I all Sir. there? हाँ बेटा, एक एक मिनट, एक मिनट। यहाँ से रे जाएगा और किस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगा? करेगा ना किधर ना किधर? हेलो, करेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्या बना? ये इसका u है और ये इसका क्या है? V है. v है। किसका? किसका? लेंस का, बराबर। Yes, sir. बट कह रहे हैं इन दोनों के बीच में मिरर है। कौन सा मिरर है? Convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर है, इधर है, कॉन्वेक्स मिरर है। एंड कॉन्वेक्स मिरर रखने के बाद में द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर एट द सेम प्लेस। इसका मतलब जो लाइट रे इस पे पड़ रही है वो इस पे परपेंडिकुलरली पड़ रही है, तो ही तो लाइट विल रिट्रेस द पाथ ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
That means the virtual, that means this, ये जो image है, ये जो image है I1, that is the object of the second, ये तो मानते हो ना आप? Yes, लो, sir. that object should be on the radius of curvature of the convex mirror. लो, Yes, sir. ये भाई ये तो ये डिस्टेंस कितना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना रहता है? 2f. 2f. So, but what if it was converging at f? It's not possible at f, na, because it will be No, it is not perpendicular to possible. it. It is not possible. It is not possible. It is not possible. Understand? वो तो फाइनल इमेज मिल गया ना उधर तो. Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, sir. भाई, इसके कॉम्बिनेशन के बाद में फाइनल इमेज जो मिलेगा वो पीछे मिलना चाहिए. Got it or not? Yes, sir. अच्छा चलो, को इतना बताओ, u कितना है लेंस के लिए? u कितना है? -12. और v कितना है? ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 10 cm है. सही है क्या? Can I Yes, say sir. v should become 10 plus 2f? हेलो, Yes, sir. तो ही तो होगा. और लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/v minus 1 Minus upon 1 u upon is u 1 is upon equal f. to 1 तो ये upon हो f. जाएगा 1/10 plus 12 plus 1/12 is 1/f. f कितना है क्वेश्चन में? 10 है. यहाँ से आप ढूंढ लो, f ढूंढ लो. ये f किसका रहेगा? ये मिरर का है. हेलो, यहाँ से आप 2fm ढूंढ लो and you will get the radius of curvature of the mirror. हेलो, getting it? Yes, sir. इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. getting it ना? Yes, sir. ठीक है. 33. अब ये हम लोग कर चुके हैं पहले भी. Two parallel light rays of isosceles prism of refractive index √3/2. The angle between the emergent rays. याद है मैंने आपको बताया था, यहाँ से रे जाएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा, फिर डिविएट करेगा इधर. ये कर चुके हैं, लास्ट टाइम ही किया था हम लोग ने. ये डिविएट करेगा इधर. द एंगल बिटवीन द टू इमर्जेंट रेज, याद है? इट इज 2 डेल्टा. हेलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग. एक मिनट. ये ऐसे जाएगा, ऐसे मुड़ेगा. याद है किया था, नॉर्मली जब जाएगा तो पास हो जाएगा ऐसे. यानी इसे ये डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, तो ये Delta. कितना रहेगा? Delta. 2 डेल्टा. याद आ रहा है वो सम? याद आ रहा है? लास्ट टाइम Yes, sir. इंट्रोडक्शन Yes, sir. वाला किया First था. time is हाँ. ओके, ये है. एंगल बिटवीन द टू इमर्जेंट रेज डेल्टा है, डेल्टा. अब डेल्टा मांगता है हमको. तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या? क्या ये थिन प्रिज्म है कि अच्छा खासा बड़ा प्रिज्म है? हाँ, हेलो, ये बड़ा प्रिज्म है भाई. हेलो, अरे यार, आइसोसेलेस प्रिज्म थिन थोड़ी होता है. हेलो, तो आपको इस फेस पे म्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज आई? इस फेस पे ये अगर रे ऐसे जा रहा है, ये वैल्यू कितना है? कैन आई से दिस इज 45, सो दिस विल आल्सो बी 45. हेलो, आर मिलेगा ना आपको. विच फॉर्मूला? एट दिस फेस कैन आई अप्लाई स्नेल्स लॉ? बोलो. म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. म्यू कितना है? √3/2. नहीं, √3 and 2, ये दोनों अंदर ही है क्या? हाँ. साइन आई कितना है? 45 है. साइन आर, साइन 45 1/√2, तो ये आपको आएगा √3/2. हाँ, नहीं, साइन 45 1/√2, तो √2 कैंसिल हो गया, तो √3 कितना आएगा आपको? हाँ, 145. एक मिनट, ये गलती हो गई. क्या गलती कर दिया मैंने? ये डेंसर से रेरर में जा रहा है. rather than applying this formula, just apply basic formula mu1 sin i1 is mu2 sin i2. ये confusion है. Can I say mu1 sin i1 is mu2 sin i2? mu1 अंदर वाला mu है, अंदर वाला mu √2 है,
इंटू साइन 45, बाहर वाला है साइन आर इंटू म्यू 1 होता है, करेंगे, और म्यू इसका √3/2 है। तो ये हो जाएगा √3/2 sin r, so r will be 60 degree, so can I say delta will be, याद है ना r minus I, when it is going from denser to rarer, it will become 60 minus 45, it will become 15, so this answer will be 30 degree because I need 2 delta। तो अंदर से बाहर आना है μ1 sin I minus μ2 sin I2 and you will get the resultant answer। hello, are you all there? Yes, sir. समझा ये मेथड? हेलो, समझ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. 35 कुछ और सम्स है। 35 चलो बताओ, एक लेंस था इन फिगर 1 द लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस मच इज शोन। तो ये एक लेंस है, तो फोकल लेंथ कितना है 10 cm, 10 cm। उसको काट दिया, मगर ऐसे काटने से कुछ फर्क पड़ने वाला? पावर कम नहीं होगा। यस 10 cm, ये भी 10 cm, and the object of height is 1 cm is placed at a distance of 7.5 cm। तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है और ये दिया है। सबसे पहले मुझे बताओ कि इस एफ नेट क्या हो जाएगा, 1/f नेट का फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्या फॉर्मूला है? 1/10 दैट इज 1/5 हो जाएगा ना ये। 1/5। तो एफ नेट हो गया 5 cm। अब बेसिक कंसेप्ट, तो कैन आई रिप्लेस दिस बाय वन लेंस ओनली? यस सर। अरे इन दोनों को एक ही लेंस बना देते हैं जिसका एफ रहेगा 5। कह रहा है ये ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया है 1 cm और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 7.5 cm। द हाइट ऑफ द इमेज है, एकदम इजी है। वी ढूंढने का, वी कौन से फॉर्मूला से ढूंढेंगे? अरे लेंस फॉर्मूला बोलो ना यार। 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये कर सकते हो? यस इधर से आपको वी मिलेगा, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? माइनस v/u। माइनस नहीं है, वी बाई यू आता यस है सर। विद द साइन which will be size of image upon size of object। ऑब्जेक्ट। यस सर। so this is a standard sum but it is important। ये कर सकते हो ना आप लोग? यस बेसिक सर। सम ही था ये, तो पहले कर चुके हैं हम लोग। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज द स्टैंडर्ड सम, खाली मैंने पहले ये फॉर्मूला लगाया। अरे क्या फटाफट हो गया यार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हेलो यस सर। 37 पे आता है। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉनकेवो कॉन्वेक्स ऐसे होता है क्या? हेलो, इसका म्यू कितना है? 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 एंड 50, सही है क्या? R1 है और ये क्या है? R2। द फोकल लेंथ इन द प्लेस्ड इन लिक्विड है, इसके साइड में लिक्विड भी है, मजा आने वाला है। कौन सा फॉर्मूला? यू नो, ये μ2 है। μ1 कितना है? अरे भाई बोलो ना, लास्ट दो समय यार। μ1 कितना है? 1.4। डू यू नो द फॉर्मूला 1/f? अभी करते थे हम लोग। 1/f is μ2 by μ2 minus -1। μ2 by μ1 minus 1 1/r1 minus 1/r2। कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालो। μ2 कितना है? 1.5 by 1.4 -1। R1 कितना है? 30 के -30। देखो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, लेफ्ट साइड पे। यस सर। यस सर। तो आपको इधर खड़े हो जाना है, सही है क्या? दोनों माइनस इस तरफ देखना, दोनों माइनस है। हाँ, तो ये -1/30 माइनस और -1/50 बराबर क्या? यस सर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? फोकल लेंथ ही चाहिए, इसका वैल्यू आपको दिखाई देगा। गेटिंग इट? यस सर। अच्छा, अगर ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता तो दोनों प्लस होता। दोनों प्लस होता। कॉन्वेक्स उल्टा, हाँ यस सर। यस सर। याद रख लेना इसको।
कोई इश्यू नहीं है। So 1 और sir. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया ये Done sir. इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ गया रहेगा कौन से इंपॉर्टेंट सम्स है। ओके, तो ध्यान रखो उसका, उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। ओके, यू नीड टू फिल्टर आउट द क्वेश्चंस। 38 9. पर आता है, 38 कर लेते हैं, चलना, दो समय है, दो समय। Yes sir. Yes sir. इन अ फिगर शोन एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन mu1 mu2 एंड mu3। अच्छा, कोई बता सकता है किस में डिविएशन नहीं हो रहा है? mu1 से mu3 में डिविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। दैट मीन्स जब भी डिविएशन ना हो मीडियम में, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 3 है, सही है क्या? Yes sir. या ये मीडियम, इसको पकड़ते हैं मीडियम 3 और इसको पकड़ते हैं मीडियम 2, नाम Medium ऐसे 2. दिया है इसके लिए, चलेगा ना? Yes sir. Yes sir. जिस डिविएशन में, जिस मीडियम में डिविएशन नहीं होता उसका म्यू सेम होता है, मींस mu1 और mu3 Sir also सेम। B है। एक मिनट बाबा, एक मिनट, हेलो, Okay sir. Okay. आधा अधूरा आंसर है, रुक जाओ ना यार। ओके, Yes sir. Yes sir. अच्छा, कैन यू टेल मी, ये फेस ऐसे है, इसका फेस ऐसे है, इसका नॉर्मल ऐसे ही कैसे रहेगा? हेलो, ये जो रे Yes sir. जा रही है, कैन आई से इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल? हेलो, क्या ऐसे बोल सकता हूँ मैं? ये जा रहा था ऐसे, एक नॉर्मल और थोड़ा अंदर आ जाएगा, नॉर्मल ये हो जाएगा, सही है। रे को जाना सीधा था, रे मुड़ गया नॉर्मल के तरफ। हेलो हेलो, जब वो 3 मीडियम से 2 मीडियम में जा रहा है, हेलो 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 हेलो, यस और नो, अरे हाँ तो बोलो Yes यार। sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ये ये रे को इधर इधर ऐसे जाना था, ऐसे जाने से जाता था सीधा, उसको जाना सीधा था, बट वो बोल रहा है मैं मुड़ गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब भी रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? Zero to denser. रेयर टू डेंसर, मतलब कौन रेयर है और कौन डेंसर है? 3 रेयर है Mu 3 rarer है और mu 2 और म्यू 2 denser. डेंसर है। अच्छा, डेंसर का म्यू ज्यादा होता है, Yes sir. तो दैट मींस म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 3। हेलो, Yes sir. Answer B. रेयर टू डेंसर, अंडरस्टैंड? Yes sir. कोई इश्यू नहीं है। क्या आंसर है? बी है क्या? हाँ, B B. सही है। Yes sir. अच्छा, ये अगर ऐसे हो जाता है, ये डाइवर्जिंग हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बोलो फिर क्या? Away from the normal. So answer हाँ, तो C होगा. आंसर उल्टा हो जाता है फिर। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? गेटिंग इट? Yes जिसमें sir. नो डिविएशन होता है, ये नीट के लिए फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि रे गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, और नो डिविएशन। गेटिंग इट? 39th last question and then last lecture, and then revision. I'll take 2 more lectures for you. Okay. Probably it is over only, इश्यू नहीं है कुछ, थोड़े हार्ड वाले सम्स भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। When a wavelength lambda is incident on an equilateral prism, 60 डिग्री वाला, अंडरस्टैंड? हेलो, Yes sir. minimum deviation is found that the angle of deviation is equal to the angle of prism. Angle of deviation Is equal to the angle of the prism. मतलब a के बराबर है, सही है क्या? Yes sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मुझे कौन सा फॉर्मूला आता है? एक ही तो आता है, sin a plus delta m divided by 2 अपॉन sin a by 2। अरे बोलो, Yes sir. बट डेल्टा m a के बराबर है। हेलो, तो Yes sir. ट्रिग्नोमेट्री के Yes. लिए क्या हो जाएगा? sin a, Sin A by sin A by 2. अभी cos बॉस में करने आता है क्या? sin, इसको लिख सकते हो 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2 Cos A by 2. अपॉन sin Sin a A by by 2 2, कैंसिल हो जाएगा. उड़ So गया। 2 cos A by 2. तो ये क्या हो गया? क्या हो गया यार, ये बोलो ना, क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगता है, तो 2 cos a by 2 आ गया, बट a कितना है? 60 डिग्री है ना, Sir, yes sir. Yes sir. Yes sir. तो म्यू तो कितना रहेगा? 2 So cos 2. 60 2 3 by 2 30 into रूट 3 by 2 मतलब root 3 रूट हो 3। जाएगा. Root 3. Yes sir. ये नहीं आया तो क्या आया? हेलो, Yes sir. अरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अभी क्या भाई, Yes sir. ठीक है। तो आई होप वी हैव कंप्लीटेड विथ द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ
क्वेश्चंस ऑफ रे ऑप्टिक्स। अभी 3 लेक्चर और बाकी है, वो मैं रखता हूँ कभी टाइम पास करके, अंडरस्टैंड। अभी आप लोग Yes, पढ़ाई sir. शुरू करो बेटा बराबर से, अंडरस्टैंड, ठीक है। Mustafa sir will also complete I think so the whole chapter in this week, and then you'll have lot of ample of time. आज आप तारीख चेक कर लेना, मैंने कहा था December 20 को मेरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, ओके ठीक है। 21st है क्या? 21st है, अंडरस्टैंड। Yes, sir. एक 2-3 लेक्चर और है वो हम लोग देख लेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। Bye, sir. Thank you.